Warm greetings to all of you. Welcome to Feeling Schooling Odisha. We have read about the 10th chapter in our previous video. Today, I want to see how the questions on tenses are asked through multiple choice and how confusing it is. So, here I am to remove all your confusion regarding the proper usage of perfect tense, which tense has to be perfectly used. So, what is our first question? Now, they dash in Srinagar for 5 years. Okay, now the verb is leave. Actually, we have many tenses over here like present continuous, past continuous, but as I told you the other day, we have to see the for and since. So, when we have for here, for and since, actually, we use present perfect continuous, and why has been living is also present perfect continuous, and have been living is also present perfect continuous. So why we have to choose. How are we going to choose the correct one? They is actually our subject. They is our subject and they is plural. Therefore, has is singular and have is plural. So they plural will go with have. I hope it is understood. Yes. Let us come to the second one. At the moment, the child dash in the garden. At the moment. Now I told you that we have to use time phrases like now, at the moment, all these for continuous tense. And here, at the moment, the child dash in the garden. So which is our present continuous? So here we have to take care of this word. Now how to actually find out? Okay, at the moment, because of that we are thinking that our answer is present continuous, that is playing. The verb is, so at the moment the child is actually the subject is singular, therefore is playing. And playing, we cannot actually ing form cannot be used without that what do you call that, auxiliary or helping verb. So short the answer is playing. Next, I dash you already about it. I dash you already about it. So what is it? Now we have to here focus on the word already. Okay, when already is used, we use perfect tense. So simple perfect, what is the perfect tense? Now what is the V3 of tell is told? Nowhere has been used told, only the first option has told, which is simple past, and it cannot be applied over here. We are thinking which tense has to be used, like already means present perfect. So for this we have used the word have told is the correct answer. Now fourth one, if you dash hard you will secure a first division. Now a sentence टी actually आमर कौन ना if clause आमे कहू जोटा कि conditional clause. एटा भल भाव रे मन रखिथिबे कि एटा दीटा सेंटेंस आमर थाए दीटा क्लॉज, तेणु को क्लॉज रे को टेंस यूज हुए. जेमिति कि आमे एटारे जेमती इफ अच्छी इफ ए जो वर्ड इफ एटा इफ क्लॉज, तो इफ सहित जो सेंटेंस टे जोड़ित होइथिबो जोड़ा होइथिबो सेइथरे आमे सिंपल प्रेजेंट यूज करिवु. कोन यूज करिवु? सिंपल प्रेजेंट. आउ नेक्स्ट द सेकंड पार्ट विल बी फ्यूचर. जेमती कि एठी विल सिक्योर, तो विल सिक्योर एंड सिंपल प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट विल गो विथ इफ and
future will go with the second part. So एठी कोटा आसीबो ताले हमर if you dash hard हमर simple present कोटा आसीबो ना studied तो केबे हबनी सेटा past study have studies are study केबे हुए नहीं have studies भी हुए नहीं studies एकुटिया यूज हुए have सहित v3 यूज हुए तो हमर आंसर हबो b if you study hard which is very much simple present used over here. Next question number 5. She dashed the post office on her way for school every day. Okay, on her school she dashed the post office. एटा गोटे एक्चुअली आमर कौन ना एवरीडे जो हैबिट जो से स्कूल जाए एवरीडे सो सबुदिन सी पोस्ट ऑफिस पारी ही जाए तो आमर ये जो एवरीडे हैबिट रे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जोटा आम कहू सिंपल प्रेजेंट यूज हम तो ये जेहेतु आमर सब्जेक्ट अच्छी सी तेणु आम सी सहित सिंपल प्रेजेंट रे पासेस आसीबो सी पासेस सो दिस इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ the word pass over here as per the pronoun or the subject used here. Next is the sentence he dash since morning. आउ टिके पूर्वरु मु कहितली से क्वेश्चन नंबर 1 रे जे for आउ since यूज हेले जे हमर कोन ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नॉट कंटीन्यूअस टेंस ओके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज हबो कोथरे ना जोथरे हमें नाउ एट द मोमेंट वर्तमान एगुडा थिबो एठी जो हमें सिंस अछि सिंस because of this word since we have to take care of the word since अच्छी से सकाशे आमे कौन यूज करिबू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आमर कोथरे कौन यूज होइची हैड बीन तो केबे हबो नाही हैड बीन होची पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ए वर्तमान आमे आसीबू इज रीडिंग होची सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस जोटा कि एठी हबो नाही कारण सिंस लागिची आमर परफेक्ट आसीबो एथरे सो परफेक्ट कंटीन्यूअस आसीबो प्रेजेंट परफेक्ट तो आमर असुविधा होची जे कोटा हैव बीन हबो ना हैज बीन हबो वर्तमान जोड़ा का जाक हैज और हैव जोड़ा कि आमर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे यूज हुए एठी आमे हैज यूज करिवु ना हैव सेटा केमे केमती जानिबु ना ए जो अछि आमर जो सब्जेक्ट ही होचे सिंगुलर तेनु आमे हैव तो प्राय लागे प्लूरल ले आमे ही सहित हैज ही यूज करबु तेनु आम आंसर 6 रो बी आंसर होची करेक्ट नेक्स्ट The pen dash me 10 rupees. Okay. This pen dash me 10 rupees. मुझे कहया को चाहे जे एठी जदी वर्ड मी नथांता ताहले आमे कहिथांतु जे कोनोसी गोटे क्वालिटी रो पेन सेटार दाम होची 10 रुपीस किंतु एठी आमे कथा होचु सेथरे सिंपल प्रेजेंट टेंस निश्चय आसीबो जेमति मु कहितली एज यूजुअल और हैबिट किंतु एठी कौन हबो ना एठी मी जेहेतु दिस पेन डैश मी 10 रुपीस माने से किनी सारी चिताकू तो कॉस्ट केबे भी हबनी कॉस्ट होची सिंपल प्रेजेंट एठी आसीबो नाही कारण सिंपल प्रेजेंट वर्तमान को बुझाए एठी ऑलरेडी आमे टिके जोटा कि सरी जाईची मी 10 रुपीस दिस पेन कॉस्ट्स मी हैज कॉस्ट तो हबो नाही कॉस्टिंग तो सिंगुलरली विदाउट हेल्पिंग वर्ब लागिबो नाही आ तार पास्ट टेंस रे कॉस्टेड हुए नहीं पास्ट रे आमर कॉस्ट रोची कॉस्ट ही हुए एठी नाही सेटा ताले आमर एप्रोप्रिएट कोटा हबो ना हैज कॉस्ट दिस पेन हैज कॉस्ट मी 10 रुपीस माने मु किनी सारी चिताको बुझिला ओके वर्तमान आमे आसीबू क्वेश्चन नंबर 8 ही डैश फॉर मी सिंस मॉर्निंग पुणी से क्वेश्चन आउ थे रिपीट होती सिंस अच्छी मॉर्निंग अच्छी वेट अच्छी आमर वर्ब आमर हेला सब्जेक्ट होची ही तेणु
आमे कौन करूँ ए ही सहित आमर प्रेजेंट रो वर्बटा जीव कौन ना हैज आउ हैव से आउ टिके पूर्व आपण सहित डिस्कसन करती जे ही और सी सहित हैज जीव हैव हो जीव प्लूरल और हैड बीन तो पास्ट परफेक्ट तेणु ये पास्ट परफेक्ट लगे ना ये आसब ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी तो आमर जो ही सिंगुलर अच्छी से सकाशे आमर हैजटा एप्रोप्रिएट हम ना नेक्स्ट हूँ द सन डैश बाय डे एटा हूँ एवरी डे द वर्क which is actually natural habitual okay universal truth the sun shines by day ओके तेणु ये साइंस जोटा कि सिंपल प्रेजेंट यूज हम कारण यहाँ चिराचरित एवरीडे रो काम इट इज habit and it is actually the universal truth the sun shines okay so we have to use the simple present sign ro simple present ethi jehetu sun is singular subject tenu ame signs nobu next the bell dash just now आटे पूर्वर से भाई आम गोटे दीटा प्रश्न करूँ नाउ को लेकिन नाउ एट द मोमेंट से गुड़े आमर कौ टेन्स यूज हम ना आमर यूज हम हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो आमर जो ये रिंग अच्छी रिंग रे रिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस आमको दरकार हूँ वर्ब कौन ना ये जो जस्ट वर्ड अच्छी नाउ मान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किंतु ये जो जस्ट अच्छी आमे तापाई कौन यूज करूँ ना प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस रो एठी नहीं ऑप्शन इज रिंगिंग नहीं खाली रिंगिंग अच्छी रिंग्स भी नहीं बिकॉज ऑफ जस्ट नाउ बेल तो बाजे किंतु जस्ट नाउ जेहेतु से फ्रेज टी को यूज करा जाए करा तेणु आमर मेन एप्रोप्रिएट मोस्ट एप्रोप्रिएट हूँ डी कौन ना हैज रंग प्रेजेंट परफेक्ट वी हैव टू यूज हियर बिकॉज ऑफ दैट just now the word just and now okay now let us come to the 11th one she dash college since 4th July पुणी एठी जो आमर since यूज होइची जो द्वारा कि आमर ये आसब कौन ना से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो यहाँ बहुत इजी थिंग जे सिंस और फॉर रे आम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करूँ तो एज यूजुअल सी अच्छी सी सिंगुलर तो कौन हम ना सी हैज बीन अटेंडिंग आ बाकी तक तो आसब नहीं कारण सीन सहित अटेंड्स इज अटेंडिंग अटेंडेड एगुड़ा पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इट इज नॉट टू बी यूज्ड so with since we use present perfect continuous one and only answer. Now come to question number 12 why dash late every day okay ना ये जो एवरीडे अच्छी माने जड़े तार हैबिट कर से सबुदिन लेट आसे तो ये जो हैबिट जोटा मु आपन को कहली हैबिट माने आमर आसीब सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल प्रेजेंट एठी कौन हम ना यहाँ क्वेश्चन सेंटेंस अच्छी तेणु आम तार स्ट्रक्चरटा आम कौन चेंज करूँ ना यू कम लेट एवरीडे आम जदि ताकू फुल स्टॉप सेंटेंस नहीं थांतु यू कम लेट एवरीडे होता तो आम जेहेतु ताकू क्वेश्चन ने परिणत करूँ आमको डू डिड डज भितरू गोटे चूज करिया को पड़ो ओके ना तो आमको जो वाई अच्छी आमर एठी जो सब्जेक्ट अच्छी कौन ना यू सहित आमर डिड तो हम ही ना डी ऑप्शन रे डिड हूँ पास्ट टेंस हैड यू कम लेट एवरीडे आम लेट एवरीडे एज यूजुअल मु कहली हैबिट आ सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल प्रेजेंट रे आमर तीन टी ये लगे डू आउ डज आउ इज आम आर लेकिन एठी तो नहीं इज आम आर से गुड़ाक कंटिन्यूअस लगे एठी आमर श्योर शॉर्ट डू यू कम इन क्वेश्चन वी यूज द वर्ड डू एंड डज जेहेतु एठी आमर यू अच्छी
ये कौन ना सब्जेक्ट यू सहित जदियो सेटा सिंगुलर आमे केबे भी डज यूज करू नाहू आमे यू को आमर एटा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन सर्वदा डू ही निए जदियो सेटा सिंगुलर हो या प्लूरल हो वर्तमान व्हेन ही डैश यू ही विल लव यू यार अर्थ कौन ना एटा से ही भलिया हो गला जो दीटा सेंटेंस क्लॉज वाला ना एठी जो अच्छी हमर फ्यूचर अच्छी विल तो व्हेन ही डैश यू ही विल डबल डबल फ्यूचर केबे भी लागबो नाही तो विल मीट रो प्रश्न ही उठु नाही तो हमर गोटे क्लॉज वाला सेंटेंस रे जोटा कि एटा सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज होची ही विल लव यू तो सबऑर्डिनेट क्लॉज रे हमर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगे तेणु सिंपल प्रेजेंट टेंस मीट रो कौन ना मीट्स एठी जो अच्छी हैज मेट होची प्रेजेंट परफेक्ट यूज होब नाही विल होची फ्यूचर इज मीटिंग होची प्रेजेंट कंटिन्यूअस सो तीनोटी जाक ऑप्शन आउट हो गला तो बंचिला होची हमर मीट्स एंड जोटा कि आमे एठी सब्जेक्ट अच्छी ही सहित आमे जो एस वाला मीट प्लस एस और ईएस को लगे करी आमे सिंपल प्रेजेंट बनै थाउ तो एठी मीट्स होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट इट डैश नाउ पुणी आसीगला कौन ना ए यूज ऑफ द वर्ड नाउ एठी हैला नाउ एठी जस्ट नहीं पूर्वर आम आउ गोटे सेंटेंस रे डिस्कशन करथिलु जस्ट थिला सेठी आमे परफेक्ट लगेइथिलु एठी आमे परफेक्ट लगेबू नहीं एठी आमे कौन लगेबू ना कंटिन्यूअस टेंस ओके जस्ट नाउ अच्छी बोली द वर्ड नाउ नाउ विल टेक प्रेजेंट कंटिन्यूअस सो आमर कोटा अच्छी डज नॉट रेन तो पूरा सिंपल प्रेजेंट रे ही गला डिड नॉट रेन है पास्ट रे जोटा कि यूज हम ना हैज़ नॉट रेन्ड जदि जस्ट था ताले आमे हैज़ नॉट रेन्ड कुछ टिके ये रे नहीं थांतु कंसिडरेशन रे किंतु जेहेतु नाउ अच्छी आमर श्योर शॉर्ट आंसर होची सिंपल प्रेजेंट रो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो सिंपल लो प्रेजेंट टेंस रो सिंपल प्रेजेंट नंबर 1 नंबर 2 टा जोटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही एठी यूज हबो नंबर 15 आई डैश अप होप ओके मु एठी आपन को कहया को चाहे जे ए जो येट वर्ड टा आमे आगरू यूज थरे करिथिलु ऑलरेडी तो एठी येट ऑलरेडी जोठु थाए सेठी आमे कौन यूज करूँ ना आमे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करूँ ओके प्रेजेंट परफेक्ट पाई आमे हैज और हैव लगेबू कौन लगेबू हैज और हैव सहित आमे V3 लगेबू वर्तमान आई डैश नॉट येट गिव अप होप तो नॉट तो ऑलरेडी अच्छी नेगेटिव हो जाइए तो आम गतकाली आपन को कही जे हैव गिवन रो मझी रे आसीबो नॉट तो हैव एठी काहे कि आमे हैज यूज करिबु नाही काहे कि आमे हैज करिबुनी काहे कि हैव नबु ना ए जो वर्ड टी आई अच्छी आई ऑलवेज इज सिंगुलर एंड इट गोज विथ हैव ओके सो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर हैव नॉट येट गिवन ओके नेक्स्ट इफ यू डैश हंग्री यू कैन ईट ओके इफ यू डैश हंग्री से जो इफ क्लॉज वाला सेंटेंस मु कही जे एटा इफ रे आमे कौन यूज करूँ ना इफ जो सेंटेंस रे इफ थिबो सेठी आमे सिंपल प्रेजेंट लगेबू सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल प्रेजेंट कहार ना जो ब्रैकेट रे वर्बटा थिबो ब्रैकेट रो वर्ब होची बी रो सिंपल प्रेजेंट होची कौन ना इज काली मु बुझेइथिली इज एम आउ आर ओके इज एम एंड आर लगे प्लूरल रे और इज लगे सिंगुलर रे आर लगे प्लूरल रे आउ एम लगे विथ आई तो आमे देखिबा एठी कौन अच्छी आमर प्रोनाउन सब्जेक्ट जो यू अच्छी यू आउ आई तार ऑलमोस्ट से नहीं थाए जो सेम वर्ब बट एम जो प्रेजेंट रे आम टा केवल आई सहित जाए और यू सहित कौन हम जदियो सेटा सिंगुलर आमे आर यूज करिबू
it goes that second person is second person, actually second person pronoun ro helping verb hochi jodio seta singular or plural singular u re are use hue. Next, the earth dash round the sun. ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ୟୁସେଜ୍ରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗେଇବୁ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଛି କାରଣ ଦ ଅର୍ଥ, ଓକେ, ଦ earth dash round, that is gatanugatika, every day's work. Okay, now move is the verb over here, so simple present is earth moves. ame simple present kahinki lagailu because it is universal truth. So mind it, when there is universal truth we of course we use only simple present. तो एठी को द अर्थ जो अच्छी सेटा सिंगुलर तेणु आमे moves नेबू सिंपल प्रेजेंट रे. नाउ नेक्स्ट से भाया जमीती द अर्थ को आम नेलु यूनिवर्सल ट्रुथ, एठी भी से भाया एटा यूनिवर्सल ट्रुथ वाला सेंटेंस. द सन डैश इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट. सो आमर वर्ब है राइज आउ सेट. द सन होची उभय पाई सन होची आमर सब्जेक्ट, ता सहित आमर सिंपल प्रेजेंट टेंस रे कौन लागिबो ना राइज रे राइजेस ल हबो आ सेट रे सेट्स हबो. आमे जो डबल ऑप्शंस अच्छी कौथे भी जोठारे राइजेस आउ सेट्स थिबो सेटा को ही आमे नबु. बाकी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एगुडा को आसीबो नाही बिकॉज इट इज अगेन यूनिवर्सल ट्रूथ. सो जोटा पाई कि सिंपल प्रेजेंट यूज हुए तो सन राइजेस एंड सन सेट सेटा ही प्रकृत आंसर. नेक्स्ट, ही डैश फ्रॉम मलेरिया सिंस डे बिफोर यस्टरडे. पुणी आसीगला से जो वर्ड सिंस आसीगला तो आमर सिंस रे को टेंसटा यूज हम कही जे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रो कौन तार फॉर्मेशन ना हैज हैव प्लस लाइक वी हैव टू यूज बीन प्लस v1 प्लस ing. तो आमर एठी जेहेतु आमर कौन ना सब्जेक्ट होची ही होची सिंगुलर, ए जो सब्जेक्ट ही सेटा सिंगुलर तेणु आमे आउ टिके पूर्वर मु कहितली सिंगुलर पाई हैज यूज हुए और प्लूरल पाई हैव यूज हुए. आउ आमर एठी जो हैज बीन सफरिंग अच्छी सेटा सिंगुलर ही अच्छी से सकाशे हैव हबो नाही, हैज बीन सफरिंग. ओके, सिंस डे बिफोर यस्टरडे. सो he has been suffering. बुझेला, has for singular and have for plural. Now let us come to the next question. Next question is question number 20. कौन कहूची question number 20? Now question number 20 goes like this. It dash all the year round here. Okay. Now एटा actually वर्तमान रो कथा नुह, whole year. तो एठी आमे को जो होल ईयर राउंड ऑल द ईयर, तो बिकॉज ऑफ दिस फ्रेज ऑल द ईयर राउंड वी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज विच वन, ऑल द ईयर राउंड पाई आमे प्रेजेंट परफेक्ट ही नबू. हैज रेन्ड आउ इट अच्छी, इट इज सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर रे जमती ही सहित सिंगुलर रे आमे हैज यूज करू से भलिया इट सहित भी आमे सिंगुलर रे हैज यूज करिबू. तो इट हैज रेन्ड ऑल द ईयर राउंड हियर. काहे कि इज रेनिंग और रेन्स और हैज बीन रेनिंग हबो नाही ना हैज बीन रेनिंग एथिपाई हबो नाही कि आमर सिंस और फॉर एठी नाही. एटा गोटे चिराचरित ऑल द ईयर होल ईयर द एक्शन हैज बीन डन, सो इट हैज
rain. बर्तमान आम पाखे आउ पांचटी क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 से भाया आम केवल ये फ्यूचर टेंस देखा फ्यूचर टेंस रे केमती आम ब्रैकेट रे दिया जाइथिबा वर्ड रो फ्यूचर टेंस यूज करिबू ओके तेणु आमर फर्स्ट क्वेश्चन कौन है ना आई डोंट थिंक वी डैश मीट अगेन आ मु कही फ्यूचर पाई विल आउ शैल यूज हुए विल आउ शैल आई डोंट थिंक वी शैल तो ये ऑप्शन रे नहीं तो आमर श्योर शॉर्ट ऑप्शन हम विल मीट सो विल सहित V1 आसे V1 वी विल मीट because of the subject as we will meet again. now actually मुझे कहया को गोटे चाहे जे will आउ shall सीटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सहित जाए नहीं माने ही शी इट सबू क्षेत्र रे will ही लगिबो shall कोथरे ना INV बट एठी आमे shall गोटे मॉडल वर्ब ओके will भी आमे गोटे क्षेत्र रे जोटा कि पॉसिबिलिटी थाए से क्षेत्र रे विल यूज करि पारू द यूज ऑफ द विल एज ए मॉडल वर्ब एंड व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी सो व्हाट इज आवर next one is he dash here early next month okay now as usual like आमे नेक्स्ट मंथ विषय रे कथा होचु ओके आमे नेक्स्ट मंथ विषय जेहेतु कथा होचु आमे बी नबा बी वर्बटा अच्छी जेहेतु ब्रैकेट रे तेणु आज यूजुअल आउ टिके पूर्वरु कहितली नेक्स्ट मंथ माने ही फ्यूचर आ फ्यूचर माने ही विल शैल आ तेणु एठी हैज बीन आदौ यूज हब नहीं हैड बीन भी कारण से गुडिक गोटे होची पास्ट परफेक्ट रो गोटे होची प्रेजेंट परफेक्ट रो आ वाज होची पास्ट टेंस रो आ एठी नेक्स्ट मंथ एंड से नेक्स्ट मंथ सकासे आमे डिसाइड करबु जे कोटा ना विल बी आवर करेक्ट आंसर नेक्स्ट आसीगला पुणी आउ थे से इफ क्लोज वाला सेंटेंस इफ आई गो टू स्कूल लेट द टीचर डैश मी मुझे आपण मानू कहया चाहे ऑलरेडी एठी इफ क्लोज वाला रो आंसरटा दिया है अच्छी कौन ना इफ आई गो ये जो इफ अच्छी वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग एज लाइक इफ अच्छी इफ सहित जो वर्बटा कौन ना गो ओके as I told you if आसे जतबले immediately सही सेंटेंस रे आमे सिंपल प्रेजेंट यूज करथाउ आ एठी जो यूज कलु आमे सिंपल प्रेजेंट गो बिकॉज द वर्ब इज गो therefore आमे नेक्स्ट रे कोन यूज करबु नेक्स्ट रे निहाती भाबरे हमर विल यूज हबो जेहेतु इट इज इफ कंडीशनल क्लॉज कंडीशनल क्लॉज यूजिंग if so mind it with if the simple present goes simple present in the next one we use this word will so what will come the teacher will punish me so will punish amar कोठी अच्छी ना सी ऑप्शन रे will punish अच्छी आउ बाकी गुड़िक कहीं लगे ना मु ऑलरेडी कही सारी जे इफ क्लॉज बिकॉज ऑफ कंडीशनल इफ क्लॉज योर शॉर्ट वी हैव टू यूज द वर्ड विल एंड नॉट इवन शैल नॉट इवन इज एंड नथिंग so this is the correct answer now let us come to question number 24 if you study hard you dash bracket get a first class now से भाया सेंटेंस एटा इफ यू स्टडी हार्ड यू गेट आमर जो वर्ब अच्छी गेट सेटा सेकेंड पार्ट रे अच्छी इफ वाला सेंटेंस रे नाही क्लॉज वाला मेन क्लॉज रे अच्छी तेणु गेट पूर्वरु या पूर्वरु कहितली गेट पूर्वरु कौन हम ना विल आमर एठी तार फॉर्मेशन होची सिंपल प्रेजेंट जोटा कि स्टडी होची सिंपल प्रेजेंट गोटे साइड इफ सहित सेंटेंस रे सिंपल प्रेजेंट लगिबो आउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लॉज रे इफ क्लॉज नुह मेन क्लॉज रे हमर विल प्लस V1 तेणु हमर V1 टा गेट अच्छी हमर विल गेट लगिबो विल गेट माने हमर बी ऑप्शन इज करेक्ट सो इफ यू स्टडी हार्ड you will get a first class as usual. Now next is number 25 and the last one of this paper
and what does it say? He dash for Srinagar next week. से भाया मुझे आउ टे पूर्वर गोटे सेंटेंस आम यूज करूँ कौन ना नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ थिला सेटारे एठी नेक्स्ट वीक अच्छी तो आम कौन यूज करूँ ना फ्यूचर यूज करूँ फ्यूचर पाई आम विल यूज करूँ आ V1 एठी आमर वीटा कौन अच्छी ना लिव आउ ता पूर्वर विल तो शैल लिव हम ना बी ऑप्शन सी गोइंग टू लिव हम ना आ विल बी लिविंग भी हम ना फ्यूचर हम विल लिव आशा करुच्ची बुझी हो जाइथिबो भल भाव टेन्स चैप्टर टी कारण टेन्स एक्चुअली टिके कष्ट तथापि टिके नियम जानिले आमे सावधानता सहित बुझी विचारी द यूसेज ऑफ द वर्ड गुड़ाक देखिकी जमती मु फॉर कहली सिंस कहली जस्ट कहली नाउ कहली नेक्स्ट कहली तेणु जुडिशियसली यू हैव टू थिंक ओवर एंड यूज द करेक्ट टेंस. Thank you for today.